Dear students, today we shall study about poetry section in English literature. In our text, our first poem is Character of a Happy Life. It is composed by Sir Henry Wotton. As we know by its title, Character of a Happy Life, it shows that what kind of character, what kind of life should be adopted to live with happiness. Here it is clear that worldly possessions are not important to survive a happy life. There is no importance of worldly possession in our life to get happiness. It is also fact the happiness of worldly possession is only for some time, but the happiness of our quality is permanent. As this poem shows that there is a lot of importance of our character in our life. If our character is strong, if our character is permanent, if our character is fine according to the terms and conditions of our society, we should never take wrong step, illogic step to survive the life. एक बार हिंदी में देखेंगे, जैसा कि टाइटल है हमारा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसमें स्पष्ट रूप से ये बताने का कोशिश किया है सर हेनरी वॉटन जो हमारे पोएट हैं कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस से कब भरेगी। तो ये ओबियस है कि जब हमारा कैरेक्टर फाइन होगा। कैरेक्टर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लाइफ। इट इज जस्ट लाइक एट द फाउंडेशन ऑफ ए हाउस। हम लोग समझ सकते हैं कि कैरेक्टर को हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने जीवन में देनी चाहिए अगर हम हैप्पी लाइफ सरवाइव करना चाहते हैं। नाउ वी वांट टू गो टुवर्ड्स द टेक्स्ट। Now we are studying text. First stanza is, how happy is he born or taught, that serveth not another's will, whose armour is his honest thought, and simple truth his utmost skill. On the first hand, I want to tell that this stanza has 4 lines. And the stanza of 4 lines is known by the name of quatrain according to English literature. We are also seeing here that how happy is he born or taught. Here the poet says how happy, कितनी खुशी का अनुभव करते हैं is he born or taught. he जो वर्ड है वो पर्टिकुलर पर्सन की ओर इंडिकेट कर रहा है। is he born, जब वह बॉर्न होता है हम लोग कितनी खुशी का अनुभव करते हैं। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, और उस चाइल्ड के बारे में पेरेंट्स जनरली ऐसा सोचते हैं कि यह किसी को दूसरों की इच्छा के अनुसार सर्व नहीं करेगा। मीन्स हियर वी कैन से दैट ही विल नॉट बी स्लेव इन फ्यूचर फॉर अदर्स, whose armor is his honest thought. इस लाइन में ये बताया गया है कि ये चाइल्ड बड़ा होकर ऐसा बनेगा कि ये ऑनेस्टी को अपना आर्मोर मानेगा। आर्मोर की हिंदी कवच होती है। पोइट कहता है कि ये चाइल्ड जो है, जो आज बॉर्न हुआ है, ये भविष्य में ऐसा चाइल्ड बनेगा जो अपनी ऑनेस्टी के लिए आर्मोर समझेगा, कवच समझेगा, and simple truth his utmost skill, and he will give a lot of importance for simple truth. यहाँ पोइट कहता है कि यह चाइल्ड जब अपने यूथ में होगा तो ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देगा ट्रुथ के लिए, यानी कि सच्चाई के लिए। नेक्स्ट स्टेंजा, whose passions not his masters are. In this stanza, the poet says that
this person will not allow to become master for his passions. ये चाइल्ड अपने यूथ में अपनी पैशंस को यानी कि इच्छाओं को अपना मास्टर नहीं बनने देगा, मीन्स अपने पर हावी नहीं होने देगा. whose soul is still prepared for death and he will never be afraid of death. वो कभी डेथ से नहीं डरेगा. It means it is important to know death is common, death is eternal for all. So there is no need to afraid of death. Untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Untied unto the world with cares means worldly affairs have no importance for such a person. ऐसे व्यक्ति के लिए जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं यानी कि जो सांसारिक मामले हैं यानी कि वो मामले जो व्यक्ति को पर्टर्वेशन अप्लाई करते हैं, ऐसे इवेंट्स ऐसे मैटर इस व्यक्ति के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे. ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ. इट इज कॉमन फॉर ऑल. समटाइम वी गेट लव इन आवर लाइफ एंड sometimes we get hate, means vulgar, means rumor from others in our life. यहां पोइट कहते हैं कि ऐसे पर्सन पर ना तो लव का कोई प्रभाव पड़ेगा और ना कमेंट और हेट का कोई प्रभाव पड़ने वाला है. Who hath his life from rumors freed. On the first hand I want to tell hath means has here. hath का मतलब यहां has है. who hath his life from rumors freed. ऐसे पर्सन जो हैप्पी कैरेक्टर मेंटेन करते हैं वो तरह तरह की रूमर्स से अपने को फ्री रखने का प्रयास करते हैं. यानी कि रूमर कैन नॉट पर्टर्ब सच पर्सन्स. ऐसे व्यक्तियों को रूमर परेशान नहीं कर सकती. हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट एंड सच पर्सन्स हैव स्ट्रॉन्ग रिट्रेट इन हिज लाइफ एंड दे फॉलो ओनली देयर ओन कॉन्शियंस. कॉन्शियंस का मीन्स यहाँ बुद्धि विवेक है. ऐसे लोग अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उचित निर्णय लेते हैं. whose state can neither flatterers feed. और इन लोगों के लिए कोई भी फ्लैटर नहीं कर सकता. फ्लैटर का बिल्कुल साधारण भाषा में अर्थ है चापलूसी करना. ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई भी चापलूसी का व्यवहार उनके साथ प्रयोग नहीं कर सकता. मीन्स नो वन कैन चीट देम नॉर ruin मेक ऑपरेसर्स ग्रेट. एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं ऑपरेसर्स मीन्स अपोजर. नॉर ruin मेक ऑपरेसर्स ग्रेट. ऑपरेसर्स भी उनको ruin नहीं कर सकते. ruin का मीनिंग बर्बाद करना होता है. ऑपरेसर्स भी उनको बर्बाद नहीं कर सकते. नेक्स्ट स्टेंजा. हु एनवाइज नन whom chance doth rage. हु एनवाइज नन. एनवाई का मीनिंग हमको जानना यहाँ बहुत जरूरी है. एनवाई मीन्स ईर्षा करना. ईर्षा हम लोग जानते हैं. Who envies none whom chance doth rage. Sorry. Who envies none. जो दूसरों से एनवाइज नहीं करते. Whom chance doth rage. ऐसे लोगों को रेज होने का चांस मिलता है. रेज मीन्स आगे बढ़ना होता है किसी भी दिशा में. तो जो लोग दूसरों से ईर्षा नहीं करते उनके लिए रेज होने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है. नॉर बाइस हु नेवर अंडरस्टूड. बहुत ध्यान से पढ़ने की है ये लाइन. बाइस मीन्स अवगुण होता है. हु नेवर अंडरस्टूड. वे लोग अवगुणों के लिए मीन्स बाइसिस के लिए जीवन में कोई स्थान नहीं देते. हाउ डिपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेस नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड. बहुत अच्छी ये दोनों लाइन है. हाउ डिपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेस. जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेस मीन्स होता है दूसरों को प्रशंसा करना. पोइट यहां बताना चाहते हैं कि जब जब आपको प्रेस मिले तो बहुत जल्दी खुश मत हो जाइए.
कारण क्या है? हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन, जितने डीप बाउंड होते हैं, जितने गहरे घाव होते हैं, उनको सबसे सुलभ रास्ता प्रेस के से होके जाता है, प्रशंसा से होके जाता है। प्रशंसा के माध्यम से व्यक्ति किसी के लिए बाउंड अप्लाई करता है, दुख दर्द अप्लाई करता है, धोखा देता है। नेक्स्ट लाइन, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। हियर द पोइट tells us it is not the rule of state, it is not the law of constitution, it is not important to obey in the life of everybody. It is the rules of good, means ये तो अच्छाई का नियम है। To be good he must follow it. Next stanza, who God doth late and early pray, वे लोग जो गॉड में फेथ रखते हैं, किसी भी रूप में गॉड में विश्वास रखते हैं। गॉड मीन्स हियर ओमनीपोटेंट पावर, यानी कि सर्वशक्तिमान जो है वही भगवान है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, और जो लोग गॉड में फेथ रखते हैं निश्चित तौर पर दे गेट द ब्लेस ऑफ गॉड, उनको गॉड का ब्लेस मिलता ही है, उनको ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता ही है। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend? What a fine line this is. Who entertains the harmless day? The poet wants to tell us here that our life is also a combination of joys and sorrows. Who entertains the harmless day? Sometimes we get harmful days. Sometimes we get harmless days. But we must also pass out the days with happiness or joy. It is also important for all that we should have patience in such condition in our life. यहाँ पोइट कहता है कि हमें अपनी लाइफ में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अच्छे दिन हैं तब भी और खराब दिन हैं तब भी। लास्ट स्टेंजा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। In this stanza, the poet tells that what is the importance of such a man in the society. This man is free from servile band, means a man with happy character is always free from many kinds of bands. जो हैप्पी कैरेक्टर का व्यक्ति होता है वो तरह तरह के बंधन से अपने को मुक्त रखने का प्रयास करता है। ऑफ होप टू राइज, और उसके मन में तो एक ही होप रहता है, होप मीन्स आशा, उसके मन में तो एक ही होप रहता है कि वो राइज हो। राइज का मीन्स है गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, और फियर टू फॉल, सच ए मैन इज अफ्रेड ऑफ फॉल, ऐसा व्यक्ति फॉल से डरता है। फॉल का मीन यहां पतन है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, उसके पास लैंड नहीं है, मीन्स भूमि नहीं है, जागीर नहीं है। ही इज नॉट रिच इन रेफरेंस ऑफ मनी और वेल्थ, बट ही इज जनरली यूज टू से ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। कुछ भी ना रखते हुए फिर भी कहता है वो कि मैं तो खुद का स्वामी हूं। क्यों? बिकॉज he has only positive mentality to live the life. Last line, and having nothing he hath all. In this line the poet says that such a man has nothing, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, but he hath all, फिर भी वो सब कुछ रखता है। मीन्स वो कभी महसूस नहीं करता कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी है। Now we want to tell you about this poem, Character of a Happy Life.
I have also explained this poem for all of you. Now for you, in this poem, first stanza, how happy is he born से जो स्टार्ट हुआ है, होमवर्क नोट कर ले। सब ठीक है। पोएम हम लोगों ने ये पढ़ी सर हेनरी बर्टन की। इसमें कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। इसके नीचे 2 स्टेंजास गिवन है। फर्स्ट स्टेंजा है हाउ हैप्पी, यहां से स्टार्ट है अटमोस्ट स्किल तक। सेकंड है दिस मैन डैश डैश ही हैथ ऑल। आप इन स्टेंजास को एक्सप्लेन करेंगे और मेरी जो व्हाट्सएप आईडी है इंडिविजुअल, उस पर आप भेज देंगे ये चेक करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग अटेंटिवली फॉर ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स।